Hello students, this is Ruby from Super 20 Institute, and in today's class we are going to discuss about vapor pressure of solution. In our previous class we have discussed about vapor pressure of solution which contain volatile liquids. Now we discuss about vapor pressure of solution that is solid in liquid. Okay, we know that a solution contains solute plus solvent and they are in equilibrium with the solution. Okay, now in this case we have non-volatile liquid, non-volatile solute and solvent is volatile. Okay, now what did you mean by volatile and non-volatile? So volatile is a liquid which will form vapors and non-volatile जो है it does not make vapors and जो volatile होगा it will make vapors. Okay, so let us contain let us consider a beaker which have molecules of solvent. These are the molecules of solvent. Okay, this black one denoting solvent and let us consider the solvent is present in its pure form. This is pure solvent. That means it only consists the molecules of solvent. Only the molecule of solvent present. So this is pure form. Let us consider ये हमारा component 1 हो गया solvent and this is component 2. Okay, so अगर ये pure solvent है तो how could we write its vapor pressure? Partial pressure can be written as P01. Okay, तो इसका जो pressure होगा जब हम इसको heat करेंगे closed system को तो ये vaporize होके molecules यहाँ पे वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. ओके, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सॉल्यूशन पे एंड दिस पार्शियल प्रेशर दिस वेपर प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. ओके, नाउ ये प्योर सिस्टम है. अब हम इसमें ऐड करेंगे सोल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल्स. सो क्या आ जाएगा सी अब इस सिस्टम में हमने सोल्यूट को ऐड कर दिया. नाउ अब ये जो मेरा सरफेस है पहले क्या आ रहा था इस सरफेस पे only the molecules of solvent are present and that are volatile in nature and it will form vapors and exert vapor pressure. अब क्या होगा इसमें अब molecules सरफेस पे solute के भी present होंगे and solvent के भी present होंगे. So अब यहाँ पे कुछ solute molecules भी present है. Fine. And यहाँ पे कुछ solvent molecules present है. So that molecules are of solvent and red one are of solute. Red one are of solute. Okay. Now अब देखो क्या होगा यहाँ पे ये जो रेड वाले हैं solute that is non volatile. It means it does not form vapors. तो vapors नहीं बनाएगा तो vapor pressure भी नहीं exert करेगा. तो क्या होगा कि अब मेरे को बताओ vapor pressure किस केस में ज्यादा होगा इस वाले केस में या इस वाले केस में. Now in case 1 देखो all the molecules are volatile in nature. तो जितने ज्यादा volatile molecules होंगे वो उतना ही ज्यादा vapor pressure exist करेंगे. तभी हमने स्टार्टिंग में पॉइंट भी लिखा था पिछली क्लास में that pure component have more vapor pressure. Fine. So
सो इस केस में वेपर प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। एंड अब यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? प्योर वाले का एग्जांपल आप कंसीडर कर लो, लेट अस कंसीडर वाटर। एंड यहाँ पे क्या हो सकता है? सोल्यूट हमारे क्या क्या हो सकते हैं? शुगर हो सकती है, ओके, सोल्ट हो सकता है। तो ये जो सारे हैं ये नॉन वॉलेटाइल है। अब इस केस में क्या होगा? वेपर प्रेशर इज लेस वेपर प्रेशर। एंड रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग व्हाट डज रोल्स लॉ डिफाइन? रोल्स लॉ क्या बोलता था? रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग द partial pressure of a component is directly proportional to its mole fraction in the solution. Proportional to its mole fraction in solution. Fraction in solution. So इस केस में रोल्स लॉ को अप्लाई करके देखो। हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जब यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर एग्जिस्ट हो जाता है, जब टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होगा तो हम इसे डेल्टा नॉट से डिफाइन करेंगे, दैट इज Pt इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। ओके, बट यहाँ पे क्या है? हमारा कंपोनेंट 2 जो है दैट इज नॉन वोलेटाइल। सो नॉन वोलेटाइल होने की वजह से इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज 0। ओके, तो यहाँ पे ये जो P2 होगा, P2 और प्योर 0, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो P1 के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, यहाँ पे लिखो P1। तो हमने जो सोल्यूट था, ये सोलवेंट था, इसको सोलवेंट को कंपोनेंट 1 कंसीडर किया था एंड सोल्यूट को कंपोनेंट 2 कंसीडर किया था। ओके, सब यहाँ पे देखो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव होके P1 नॉट Chi1। एंड जो सेकंड वाला P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi2, बट यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर 0 होगा, तो ये सारी टर्म जो होगी P2 will be equals to 0। नाउ अकॉर्डिंग टू Dalton law, P total is equals to P1 plus P2 and P2 is 0, so P total will be equals to P1। So what we concluded here, that in a solution in which we have solid in a liquid, the vapor pressure is only due to the solvent molecule that is volatile in nature। Okay, so note it down। Now we have to make a graph in this case। हमने पिछले वाले जब हमने लिक्विड सॉल्यूशन का पढ़ा था तो वहां पे भी हमने ग्राफ को प्लॉट किया था, अब हमें इस केस में भी ग्राफ को प्लॉट करना है। सो हमने ग्राफ बनाया था मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर के बीच में। ओके, सो व्हाट इज वेपर प्रेशर? इट इज पार्शियल प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? इट इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। हियर c इज इंटरसेप्ट, m इज द क्या होता है आपका? टेंजेंट। ओके, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सो हमारी इक्वेशन है P1 is equals to, because here Pt is equals to P1, there is no contribution of P2। ओके, तो P2 की कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ग्राफ हमारा यहाँ पे जब हम P1 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ग्राफ हमारा ये वाला प्लॉट होगा, दैट इज P1 equals to P pressure of pure component and Chi1। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? Here intercept is 0 means intercept क्या means कि हमारे यहाँ पे ये वाला ये intercept होता है, ये डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस को y एक्सिस पे हम intercept बोलते हैं। तो अगर intercept 0 that means जो हमारा ग्राफ होगा वो ओरिजिन से जनरेट होगा, since it is a straight line, तो हमारा ग्राफ जो होगा वो ऐसे जाएगा। ओके,
हमारा जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो तो ये जो ग्राफ होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ पे हमारी काई की वैल्यू होगी ओके, जैसे हमने पिछले ग्राफ में किया था। अब यहाँ पे काई की वैल्यू मैक्सिमम पुट करके देखो दैट व्हेन काई इज इक्वल्स टू 1 देन p1 इज इक्वल्स टू p नॉट 1। तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी जब 0 पुट करेंगे देन p1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे काई की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे काई की वैल्यू 1 होगी। सो दिस इज योर ग्राफ। Okay, now coming to next topic, that is ideal solutions. So what are ideal solutions? Solutions are of two types: ideal solutions and non-ideal solutions. So what are ideal solutions? Basically, ideal solution, they follows Rod's law at all the concentration range. It means कि जो ideal solutions होंगी they will always follow Rod's law चाहे concentration कुछ भी हो। It means कल हमने एक ग्राफ देखा था liquid solution के केस में, this graph is of, तो कैसे था ये वाला ग्राफ? कुछ इस टाइप का ग्राफ पढ़ा था हमने and PET this is total pressure P1 नोट, तो इस टाइप का ग्राफ पढ़ा था। तो व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस? अगर हम आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो सारे ग्राफ्स हैं ये हर एक कंडीशन को फॉलो करेंगे। चाहे आप इस कंसंट्रेशन पे ग्राफ को चेक कर लो, चाहे आप इस कंसंट्रेशन पे ग्राफ को चेक कर लो, ये हमेशा ये वाला ग्राफ जो है फॉलो करेंगे। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे डज नॉट फॉलो द Rod's law, does not follow Rod's law for some concentrations. वैसे तो आपका आइडियल सोल्यूशन प्रिपेयर करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बट हम आइडियल सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट इन केसेस अगर हम आइडियल सोल्यूशन को डाइल्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करते हैं। उन केसेस में हम उन सोल्यूशंस को बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन दैट विल शो डेविएशन। सो नोट इट डाउन। अब कुछ और पॉइंट्स लिखो आइडियल सॉल्यूशंस के। अभी हम आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज here P theoretical will be equals to P observed. What did you mean by theoretical and observed? Observed वाला प्रेशर कौन सा होता है जो हम लैब में मेजर करते हैं, लाइक हम बैरोमीटर से प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, मर्करी कॉलम से मेजर कर सकते हैं, दैट प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड प्रेशर। ओके, एंड ये जो थ्योरेटिकल है ये वो वाला जो हमने कैलकुलेट किया था, जो हमने कल की क्लास में किया था कैलकुलेट, P टोटल इज इक्वल्स टू P प्लस P नॉट 2, फिर हमने यहाँ पे काई की वैल्यू 1 माइनस x2 पुट कर दी थी, यहाँ से कैलकुलेशन की थी कल की क्लास में।
तो ये हमारा कौन सा प्रेशर है, थ्योरेटिकल प्रेशर है। ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जो हमने बैरोमीटर से कैलकुलेशंस की हैं वही वाला जो हमारा प्रेशर होगा दैट विल इक्वल्स टू व्हाट वी गेटिंग फ्रॉम द कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन वाला और ये वाला हमेशा सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। मीन्स कि हमने दो कंपोनेंट्स ले लिए, दोनों को मिक्स कर दिया एंड जो फाइनल हमारा वॉल्यूम होगा उसमें जो फाइनल वॉल्यूम होगा एंड जो हमारा हमने इन वाले दो कंपोनेंट्स का लिया दैट विल बी इक्वल्स टू 0। जैसे देखो ये हमारा सॉल्यूट है, लेट अस सपोज एंड दिस इज आवर सॉल्वेंट, दिस इज A एंड दिस इज B। लेट अस कंसीडर हमने इसकी 5 ml वॉल्यूम ली है एंड इसकी भी हमने 5 ml वॉल्यूम ली है। अब जब हम इन्हें मिक्स करेंगे, ऑन मिक्सिंग वी गेट, हमें यहाँ पे जो वॉल्यूम मिल रही है दैट इज इक्वल्स टू 10 ml। ओके, अब हम कैसे करेंगे, डेल्टा बी कैसे फाइंड करेंगे, इस वाली वॉल्यूम में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 5 plus 5 equals to C। So this means there is no change in the volume। हमने जितनी वॉल्यूम ली थी उतनी ही वॉल्यूम हमें मिक्सिंग पे मिल रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, डेल्टा H equals to 0। So what is delta H? H represents the enthalpy। So here the enthalpy of mixing is also equals to 0। जब हम टू लिक्विड्स को ले रहे हैं उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो जो enthalpy का चेंज होगा that will be equals to 0। ओके, और क्या डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे, लेट अस सपोज यहाँ पे हमने ये सॉल्यूट है एंड दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट। तो लेट अस कंसीडर यहाँ पे जो मेरे पास सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है, ये कौन से मॉलिक्यूल्स है, ए टाइप के, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शंस हो रही है दैट विल बी इक्वल्स टू ए टाइप ऑफ इंटरेक्शंस एंड यहाँ पे लेट अस सपोज यहाँ पे मेरे पास हो रही है बी टाइप की इंटरेक्शंस, बी टाइप की इंटरेक्शंस, मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स आर ऑफ बी टाइप एंड दे आर शोइंग बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो यहाँ पे जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा आई विल गेट हियर, अब यहाँ पे कौन कौन सी इंटरेक्शन होगी, जब सारा मिक्स हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी टाइप की इंटरेक्शन, ए वाले मॉलिक्यूल्स बी के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ओके, तो जब ए वाले मॉलिक्यूल बी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे ए इंटरेक्शन एंड बी A interaction is equals to B interaction equals to A and B interaction। तो ये सारी जो इंटरेक्शंस होंगी they all are equals। okay, so note it down। ये A हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, these are solute इंटरेक्शन में यहाँ पे लिख देती हूँ, they are solute इंटरेक्शंस एंड B कौन सी है, solvent interaction and AB are solvent interactions। okay, now next point number, okay, ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ओके, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच की जो इंटरेक्शंस होंगी, यहाँ पे सारी इंटरेक्शंस जो है वो इक्वल है, तो जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एंथैल्पी हीट रिलीज होगी, तो जब हीट रिलीज होगी तो क्या होगा, ये वाली जो न्यू यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, और ये वाले जो हमारे ये वाले इंटरेक्शंस थे यहाँ पे एंथैल्पी जो होगी वो सेम रहेगी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नोट इट डाउन।
दिस इज योर पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट 5। तो यहाँ पे देखो, आप इसी केस में ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, ये वाला जो सोल्यूट है इसको रख कर दो, दिस इज सोल्यूट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो लेट अस कंसीडर, जब हमारे पास ये वाली जो इंट्रैक्शन है ए टाइप की, इट हैव अ वैल्यू ऑफ 5। ओके, जब हम इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे तो हमें जो एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 5। ओके, एंड इस केस में जब हम बीबी वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तब भी हमें कौन सी, कितनी एनर्जी चाहिए, 5। ओके, दोनों के लिए 5 चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप ऑफ ए एंड बी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक ए वाला इससे बॉन्ड बनाएगा, दूसरा इससे वाला। सो वी गेट 2 टाइप्स ऑफ ए बी मॉलिक्यूल्स। तो एक ए बी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी बाहर की होगी, दैट विल इक्वल्स टू 5, एंड यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में 10। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 प्लस 5, ये एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव में रहेगा डेल्टा एच और यहाँ पे नेगेटिव में। 5 प्लस 5 माइनस 10, दिस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इज द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैंने आपको पहला डिफरेंस बता दिया कि इट विल नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा बी मिक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड delta H mix does not equals to 0. ओके, एंड यहाँ पे AA टाइप एंड BB टाइप की जो इंट्रैक्शंस होंगी दैट विल नॉट इक्वल्स टू AB टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस। ओके, यहाँ पे दिस इज अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल देख लो। एग्जांपल्स आर benzene plus toluene. So what is the structure of benzene एंड टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके CH3 ग्रुप ऐड करना है। ओके, दिस इज बेंजीन एंड टॉल्यूइन। और क्या एग्जांपल हो सकता है, हेक्सेन एंड हेप्टेन। हेप्टेन मींस 6 कार्बन चेन एंड हेप्टेन मींस 7 कार्बन चेन। तो आप ये एग्जांपल जो है वो याद रख सकते हो, या फिर आप एक और एग्जांपल लिख लो, इथेन क्लोराइड एंड इथेन bromide. Okay, these are the example of ideal solutions. Okay, now नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन में हमने पढ़ा था P theoretical will be equals to P observed, बट इसके केस में, नॉन आइडियल के केस में क्या होता है, these are not equal। तो हमारे पास 2 केसेस बन जाएंगे when एक केस में होगा जब हमारा P theoretical जो होगा वो ज्यादा होगा P observed से, दूसरा केस हमारा हो जाएगा जहाँ पे P theoretical जो होगा वो लेस होगा P observed से। ओके,
तो जो मैंने अभी ग्राफ बताया था उसी ग्राफ में थोड़ी डेविएशंस आएंगी, मींस कि जो हमने ग्राफ में स्ट्रेट लाइंस पढ़ी थी वो स्ट्रेट लाइंस की जगह ग्राफ जो होगा वो डेविएट होगा अपनी मीन पोजीशन से। ओके, अब देखो हमने ग्राफ पढ़ा था, यहाँ पे क्या था मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे था वेपर फ्रैक्शन। तो हमारा कुछ इस टाइप का ग्राफ था, यहाँ पर भी बनाओ। ये जो हमारा ग्राफ है इट विल फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, बट हमें चेक करना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा। एक्स एक्सिस मोल फ्रैक्शन एंड वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू वेपर फ्रैक्शन। ओके, तो इस केस में क्या होगा हमारा, जब हमारा P ऑब्जर्व इज मोर देन P थ्योरेटिकल देन क्या होगा पॉजिटिव डेविएशंस शो होंगी, मींस कि ये जो हमारी आइडियल लाइंस है इनके ऊपर ग्राफ बनेगा। ओके, तो देखो ये हमारा ग्राफ जो होगा इस लाइन के ऊपर को बनेगा, दिस इज फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जब हमारा केस होगा P ऑब्जर्व इज लेस देन P थ्योरेटिकल तो क्या होगा नेगेटिव डेविएशन शो होंगी, हम नीचे को प्लॉट करेंगे। ओके, तो ये जो हमारा ग्राफ होगा टू केसेस में, सो ड्रॉ दिस ग्राफ। अब इस केस में क्या होगा, देखो intermolecular forces of attraction in case of AA and BB will be more than AB type of interactions। ओके, यहाँ पे क्या होगा intermolecular forces of attraction for AA type and BB type is less than AB type of interactions। ओके, सो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे ग्राफ में डेविएशन शो हो रही है, सो नोट इट डाउन। अब हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स जो थे वो एक्सप्लेन करने हैं, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग एंड डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग। ओके, तो यहाँ पे इस केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन AA टाइप एंड BB टाइप इज मोर देन AB टाइप। तो वो कैसे हो सकता है, इफ हमारे जो AA टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं BB टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करें, इट मींस कि जो हमारा A टाइप का मॉलिक्यूल है वो B टाइप के मॉलिक्यूल को रिपेल करे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, रिपेल होने की वजह से वो होंगे एक दूसरे से अलग अलग होने की कोशिश करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा हमारा हम इजीली बॉइल कर लेंगे, हम बॉइलिंग पॉइंट को इजीली अटेन कर लेंगे। देखो यहाँ पे कंक्लूजन, जो AB टाइप का मॉलिक्यूल होगा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, AA वाले तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, इन सभी मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वंडरवॉल फोर्सेस, तो AA में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, BB में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी एज कंपेयर टू जब AB वाला मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पे वीक फोर्सेस होंगी एंड ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज लेस
बॉइलिंग पॉइंट लेस होने की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर विल बी मोर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी ये क्या होगी, मोर, ये मॉलिक्यूल ए एंड बी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा आपका, जब हमने सोल्यूट लिया एंड सॉल्वेंट, फिर हमारे पास बना सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हमारे ए टाइप एंड दिस इज बी टाइप, एंड ये जो है हमारा दिस मॉलिक्यूल्स आर ऑफ ए बी टाइप, ऐसे ही है ना। एंड यहाँ पे क्या होगा इस केस में, इसको मैं रब कर रही हूँ, यहाँ पे भी सेम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ए टाइप के मॉलिक्यूल्स, बी टाइप के, एंड यहाँ पे ए बी टाइप के। ओके, अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल, सो रिपेल होने की वजह से क्या हो जाएगा, रिपेल होने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर जाना स्टार्ट कर देंगे, जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाना स्टार्ट कर देंगे तो वॉल्यूम जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए बी की जो है वो लेस है एज कंपेयर टू ए एंड बी बी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो ईथर का, तो डेल्टा वी मिक्सिंग में हमारे पास टू केसेस होंगे, व्हेन डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0। उसी तरह डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी लेस देन 0। तो इस केस में क्या करेंगे, वो एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा एंड दूसरा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। Here positive deviations and here negative deviation. Okay, यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो ईथर मॉलिक्यूल का, एसीटोन का एग्जाम्पल दे सकते हो आप यहाँ पे। तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम, एसीटोन। मैंने आपको आइडियल में 3 एग्जाम्पल बताए थे, अब हम नॉन आइडियल में भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये किस किस का एग्जाम्पल है, ईथर एंड अल्कोहल। ओके, so note this down.
तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, और क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, HCl प्लस वाटर। ओके, एंड यहाँ पे जब पॉजिटिव डेविएशन शो होगी, यहाँ पे आप कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हो, एक पॉजिटिव डेविएशन का आपको एग्जाम्पल लर्न करना है। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो, या फिर आप 3-4 एग्जाम्पल लर्न करके चल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा CCl4 प्लस एसीटोन। So this is all about non-ideal solutions. जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम चैप्टर के एंड पेजेस पे कुछ फॉर्मूलेस लिखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के, बिकॉज यहाँ से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो वो सारे फॉर्मूले हम नोट डाउन करेंगे। नाउ हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ओके, सो व्हाट आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड हाउ विल यू डिफाइन इट? The properties which depends upon quantity, upon the quantity or amount of substance. Presently we are talking about solution. ओके, तो वो वाली प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन क्वालिटी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है क्वांटिटी और अमाउंट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। ओके, तो यहाँ पे लिख लो, एक नोट बना के लिख लो, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ solute. Okay, this property does not depend upon the nature of the solute. Nature means कि volatile है, non volatile है, तो colligative property को nature of solute से कोई भी लेना देना नहीं है। Next point is it may be depend upon nature of solvent. तो जरूरी नहीं है कि हर केस पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो सॉल्वेंट पे डिपेंड होगी। कुछ केसेस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इट मे और मे नॉट बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, तो वो हम नोट करेंगे। सो यहाँ तक नोट डाउन करो, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड हम इन प्रॉपर्टीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। 4 types of colligative properties. तो कौन कौन सी है? एक हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई के साथ। एक हमारे पास होती है रिलेटिव क्लोरिंग वेपर प्रेशर, और कौन सी होती है हमारे पास? क्लोरीन इन वेपर प्रेशर। ऐसे ही हमारे पास 2 और प्रॉपर्टीज होती हैं,
freezing of melting point, and एक property जो होती है वो that is about depression in boiling point. So these are all four colligative properties, and it will depend upon the amount or quantity of the solute particles. Okay, so बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. So आज की क्लास के लिए इतना ही. कल हम न्यूमेरिकल्स की क्लास करेंगे. उसके बाद हमने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं. लास्ट में हमारी जो एक्सरसाइज होगी उसको डिस्कस करेंगे. तो पहले हम थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं.